Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Certainly, yes. Let's begin with the headlines, friends. Well, benchmark domestic equity indices stage sharp trend reversal. Sensex surges 1,200 points. Nifty reclaims 25,000 level after 7 months. Most Asian markets end in negative territory. European indices trade mixed. And global crude oil prices drop over 3%. Brent crude trades at $64.10 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद तेज बढ़त। सेंसेक्स में 1,200 अंकों का उछाल। 7 महीनों के बाद निफ्टी ने 25,000 के स्तर को पार किया। एशियाई बाजारों में आमतौर पर मंदी का माहौल। यूरोपीय शेयर बाजारों में मिला जुला दौर रहा और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की गिरावट। ब्रेंट क्रूड $64.10 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती गिरावट का असर देर तक नहीं टिक सका और कारोबार के अंत तक शेयर सूचकांकों में लगभग 1.5% तक का उछाल दर्ज हुआ। भारत अमेरिका व्यापारिक संभावनाओं के सकारात्मक संकेतों के साथ साथ चौथी तिमाही में कंपनियों के बेहतर नतीजों से बाजार में उत्साह रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.5% की बढ़त से 1,200 अंक उछलकर 82,531 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.6% की तेजी से 395 अंक बढ़कर 25,062 के स्तर पर बंद हुआ। अक्टूबर 2024 के बाद निफ्टी ने पहली बार 25,000 के स्तर को दोबारा पार किया है। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। Now let's take a look at the stocks in detail. Well, the benchmark domestic equity indices today staged a sharp trend reversal, ending with gains of around 1.5%, with Nifty reclaiming the 25,000 mark for the first time since October 2024. The market sentiment remained upbeat amid heavy buying in index heavyweights and metal, auto and realty counters, stable fourth quarter earnings report and renewed optimism over a potential India-US trade pact. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 1,200 points or 1.48% to close at 82,531. The National Stock Exchange Nifty 50 jumped 395 points or 1.6% to settle at 25,062. The broader market indices at the BSE also ended higher. The mid-cap index gained over 0.6% and the small-cap index climbed over 0.9%. In the Sensex pack, 29 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, Tata Motors rallied over 4.1%, HCL Tech rose over 3.5%, and Adani Ports increased 2.6%. On the downside, IndusInd Bank was the only loser with a drop of 0.16%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, realty, auto and services each jumped over 1.8%. Industrials as well as metal both advanced 1.6% each. Consumer discretionary gained more than 1.5%. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,637 companies advanced, 1,327 declined, and shares of 150 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 59 companies hit their 52-week high, while 11 companies hit their 52-week low.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 28 पैसे की गिरावट से 85 रुपये 55 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 100.8 के स्तर पर नजर आया। डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार से अच्छी खबरें, हालांकि सोमवार को जो तेज बढ़त हुई थी बाजार में, उसके बाद मंगलवार और बुधवार में बाजार में हल्की मंदी भी नजर आई थी। आज भी अगर सुबह की बात करते हैं तो बाजार तकरीबन 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। अचानक से दोपहर के बाद बाजार ने दिशा और दशा बदल दी और अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो 1200 अंक और निफ्टी की बात करते हैं तकरीबन 400 अंक का उछाल दर्ज हुआ। क्या वजह थी कि वीकली एक्सपायरी थी, उसके सौदे निपट गए, उसके बाद निवेशकों में स्कोप बन गया, या कुछ खबरें भी थी, या सबका मिला जुला असर था? देखिए, मैं कहूँगा कि ये सबका मिला जुला असर था। एक तो वीकली एक्सपायरी भी थी और दूसरा जो मेजरली हमने देखा कि जैसे लालिमा जी ने बताया अभी कि अक्टूबर के बाद निफ्टी ने वापस 25,000 का स्तर जो है वो रिक्लेम किया है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जो टसल शुरू हुई थी, जो टेंशन शुरू हुए कि जो यूएस टैरिफ्स आएंगे, बहुत ही एक इम्पैक्ट होगा इकोनॉमीज़ के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, कि हाई टैरिफ से हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे। तो अब वो टेंशन्स धीरे धीरे सबसाइड होने शुरू हो गई हैं। और जो अभी ट्रंप साहब के अनाउंसमेंट्स हैं कि ज़ीरो टैरिफ होगा, उसने तो मार्केट्स में और भी ज़्यादा गंगो क्रिएट किया है कि अगर ज़ीरो टैरिफ हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं बची, फिर तो ट्रेड ही फ्री हो जाएगा आपस में। लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़ीरो टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड 100% हो जाएगा। कुछ आइटम्स के ऊपर हो जाएगा, जैसे हमने यूके के साथ भी किया है, और कुछ में टैरिफ्स भी रहेंगे। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट है कि बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही हैं। और जो टेंशन्स थी, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की हम बात करते थे, जो बहुत गहरा गई थी, हमने देखा कि दिसंबर में, जनवरी में, फेब में, वो टेंशन्स के साथ साथ एक जब टैरिफ टेंशन्स भी शुरू हुई, जो टैरिफ ट्रबल शुरू हुए, कि उसने मार्केट्स को बहुत इम्पैक्ट किया था। मार्केट्स वहीं से ज़्यादा डिसलिरेट हुई थी। तो अब जब वो दोनों ही चीज़ें सबसाइड हो रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी थोड़ा बातचीत के लिए तैयार है, उधर रशिया यूक्रेन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उधर टैरिफ के ऊपर समझौते हो रहे हैं, यूएस चाइना में बातचीत चल रही है, यूएस इंडिया में बातचीत चल रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की। तो और उधर से हमारे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इज कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी ईयर्स लो पे आ गया है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, चारों तरफ से अच्छी ही चारों तरफ से ब्रॉड बेस्ड पॉजिटिव न्यूज़ जो है हमने देखे जो पीछे कुछ दिनों में, उन्होंने मार्केट्स को वापस एक मोमेंटम दिया है कि वापस मार्केट्स उसी स्तर पे जहां से वो उन्होंने थोड़ा इम्पैक्ट शुरू किया था झेलना, वहीं वापस वो आ गए। Dr. Sharma, with Sensex at 82,000 plus and Nifty at 25,000 plus, of course, as you said, that geopolitical situations have eased and it seems positivity is all around us and we seem to be unstoppable. Of course, our defense sector has done very well post this recent incident at the borders. It has shown that that Atmanirbhar Bharat has come to the fore and we have stood our ground. Where do you see us going from here? Is this the right time to invest and buy some shares and invest in some stocks, or do you think what should one do now? Right time was to invest in the market at around 22,000, but now I don't believe that this is the right time to invest again in the market, because now markets are again peaking at the high level. So this may be volatile period in the coming times also, because now the things are only in talks. They are discussing, they are agreeing on certain things, but nothing is on paper. Right. So we have to wait and watch for the policy development, so that the clear situation becomes prominent for the people and they are able to take their decisions. But right now the positive news are there. And these are not only positive for the markets, but positive for the economy also, for the employment also, for the GDP also, for the overall well-being of the economy, because trade is always for creation of welfare. So now they are thinking about welfare, that we have to settle this trade tussle, like the US-China. Now they have agreed to reduce the tariffs at 30% and 10% respectively. Yes. From 145 or 125. So the very high tariff rates. Now they are agreeing to reduce at around these levels.
which are rational levels in their trade since the last many years. So going forward, I believe developments are very, very supportive. But we have to wait and watch the final situation, how the things are going to take shape and supporting the economy and the trade and the people. मतलब मोटे तौर पे ये माना जाए कि अगर निवेश करना है तो लगातार अच्छी कंपनियों पे सतर्कतापूर्ण निगाह बना के रखें, मौका मिलते ही जब भी आपको मौका लगे कंपनियों के रेट्स में अगर किसी वजह से बाजार में कहीं थोड़ी बहुत भी मंदी आती है तो उसमें निवेश करते रहें, निरंतर निवेशित रहें, लंबे समय के लिए निवेश करते रहें, तो ही आप शेयर बाजार का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो म्यूचुअल फंड का माध्यम तो है ही। जी बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि देखो इंडिया की मार्केट की नेचर क्या है, बहुत ही सेंसिटिव मार्केट है हमारी। कई बार न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी ही मार्केट में बहुत कुछ कर देती है, हुआ कुछ नहीं होता है फिर भी मार्केट्स कई बार बहुत इम्पैक्ट हो जाती हैं। और हमने ये बहुत बार देखा है, कोरोना के टाइम पे 2020 में जब मार्च 2020 में मार्केट्स बहुत ही फ्री फॉल में थी, 5-6 हज़ार सेंसेक्स डाउन था, निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट्स डाउन था, तो उस टाइम पे ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट्स में 40% की डिसलेरेशन हुई, लेकिन उसके अगले ही 3-4 महीने में 65% की रिकवरी हुई। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में मंडे को जब टैरिफ्स अनाउंस हुए थे तो लोग बात कर रहे थे कि ब्लैक मंडे है, बहुत सालों पहले भी ऐसा ब्लैक मंडे हुआ था, मार्केट्स में फ्री फॉल हो रहे हैं, सेंसेक्स 3-4 हज़ार पॉइंट्स डाउन है, निफ्टी 1200-1300 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन मार्केट्स ने शार्पली रिकवर किया। तो इंडिया की मार्केट की नेचर है कि जो इम्पैक्ट है एक न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, जो कई बार पैनिक सेलिंग होती है, लोग एकदम से पार्टिसिपेट करते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन उस टाइम पे एक एडवांटेज होता है मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ होता, वी आर स्ट्रांग, वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। नाउ द इन्फ्लेशन इज सपोर्टिंग, इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, तो मार्केट में ऐसी कोई खतरे की चीज़ होती ही नहीं है। ये जो उससे मार्केट के ऐसा टैरिफ होने से ये हो जाएगा, ये सब बातचीत से ही मार्केट को जो इम्पैक्ट होता है, या फिर जो स्पेकुलेटर्स हैं वो मार्केट में ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं कि डिसलेरेट हो और हमें लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसी वजह से ये सब कुछ होता है। अच्छा, शेयर बाजार में जैसे सेंसेक्स के पैक में या निफ्टी के पैक में जो शेयर्स हैं उन्होंने तो तेज उछाल भरी, लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहाँ तकरीबन 0.6% या लगभग 1% तक स्मॉल कैप में आज तेजी रही। ये रेस में शायद पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं या इसमें भी संभावनाएं और बढ़ी हुई हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है सर कि जो भी हमने मार्केट ट्रेंड देखे हैं, फ्रंट लाइन पहले वो चलते हैं, फिर पहले वो ट्रेंड सेट करते हैं पहले, उसके बाद ये जो छोटे मझोले शेयर्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं कि भाई अब मार्केट में ट्रेंड सेट हो गया, नाउ वी हैव टू मूव अप। तो यही एक पहले भी देखा गया, तो अभी सेम सिचुएशन हम देख रहे हैं। दिस इज द मार्केट ट्रेंड और मार्केट रूल और मार्केट बिहेवियर इन सच काइंड ऑफ behaviors. How do you see the defense sector going, considering the fact that the indigenously made, arms and ammunition and our products have proven their worth in this small, whatever we had, war at the border? And secondly, how do you view our pharma sector? Because the US recently decided to, it has given orders to companies to decrease their prices of drugs. President Trump was very particular and he's given a limit of 30 days. Considering that, and also the fact that India exports a lot of drugs to the US, they're generic, most of them probably. How do you view these two sectors in the light of the current situation? एक चीज़ और भी मैं इसके साथ जुड़ूंगा, जैसा लालिमा ने कहा डिफेंस सेक्टर का। डिफेंस सेक्टर में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात थे, उसके बाद से डिफेंस सेक्टर के शेयर लगातार तेज उछाल की तरफ थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस समय भी निवेश का एक उचित समय है, या वापस से वही बात कि आप सोचे समझे विचारें और सही समय पे अटैक करें? जी फर्स्टली वाई द डिफेंस सेक्टर इज बिकमिंग मोर एंड मोर prominent because we have focused defense sector not only in the recent year, we have focused since long. Our Make in India, starting from our Make in India, defense is a major part of the Make in India program, right. For the indigenous production, for the support to the exports and for the ease of doing business, then various schemes for the production possibilities and to enhance the production possibilities in the trajectory of exports and the domestic fulfillment. So now we are becoming not only at the domestic front but also in the export market. Earlier we were importing
maximum imports were there of the defense products. But now the imports are reducing significantly, but the exports are increasing significantly. Absolutely. So this is happening in the defense sector. That is becoming more and more promising. And I believe that will be a great part of our journey towards Viksit Bharat. Defense sector, defense manufacturing, defense exports, and self-reliant defense sectors. That is becoming now a great pillar of the journey towards Viksit Bharat. And second, pharmaceutical. Pharmaceutical sector is the great strength of Indian economy, and this is among the top 10 of our exports. So going forward, I believe there will not be any impact on pharmas because of such kind of news-based volatility, or I would say apprehensions. Our pharma sector will remain intact in the coming times also. And US is not only the market for us, we have a great world market for the pharmaceutical sector because we are very, very resilient and competitive, not only in the US, but in every country of the world economic system. हाँ, बहुत संक्षेप में अगर बाजार इसी दायरे में चल रहा है तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आपका क्या मानना है कि हम तकरीबन कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में बाजार किस दिशा की तरफ या किस तरह का आंकड़ा छू सकता है बहुत आराम से? क्या नया रिकॉर्ड स्तर बना सकता है? देखिए, सिस्टम बहुत ही डायनामिक है और इकोनॉमिक सिचुएशन चेंजेस ईच डे. मैं कहूंगा कि हर रोज ही कुछ बदलाव आते हैं. आज की परिस्थितियां हैं जब कंपनी जगत के नतीजे बेहतर हैं, मुद्रास्फीति से बहुत अच्छे संकेत हैं और वैश्विक तौर पे सब तरीके की अच्छी खबरें हैं, तो बाजार कहां तक जो अभी डिस्कशंस हो रही हैं, जो टॉक्स हो रही हैं यूएस चाइना में, यूएस इंडिया में, अगर ये इसी पैमाने पे खरी उतरती हैं तो मार्केट्स के लिए नए स्तर बहुत दूर नहीं है. जी, चलिए नजर डालते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों पे. एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते के लिए जारी चर्चा पर निवेशकों की सतर्कतापूर्ण नजर रही. जापान का निक्केई लगभग 1%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.8%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% की गिरावट से बंद हुए. हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा. लंदन का शेयर सूचकांक 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे. A look at the US markets now. Well, the US stocks ended mixed on Wednesday as investors waited for the next batch of economic data and trade developments, while President Donald Trump toured the Gulf states and secured $600 billion in commitment from Saudi Arabia. The Nasdaq Composite rose over 0.7% and S&P 500 ended up by 0.1%, while the Dow Jones Industrial Average dropped 0.21%. You think, Dr. Sharma, that President Trump, who came with a big bang, with so much noise about tariffs, and he almost shook the world economy, he's now realized that it's no point making too much noise and better get down to practicalities and come to a common table, a common platform to be able to negotiate with other countries like China and, of course, now with India also opening up? Yes, now he is becoming very, very rational, and he actually realized that there is nothing in the trade war and we have to finally create welfare for the people and for the traders and for the economy. Because US economy was in minus in the first quarter because of such kind of situation, and retail segment was also impacted and inflation was expected to go up. But thank to the policymakers that inflation is now at 2.3%. So going forward, I believe he has already realized the situation that nobody can be benefited from the such kind of trade war. So expectations are that now that these trade tussles will settle and the economies will again be in momentum in the coming times. He's also very keen to have manufacturing go up in the US, asking for $600 billion in commitment. That has also been finalized. Yes, that is finalized, and that is a great news for the US economy, not only for the US but for the world economy, that some more liquidity is going to be created and the markets will celebrate this situation that the such kind of deal is always supportive for the market. Right.
All right. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the economic engagements between India and Honduras in the last 3 decades have grown steadily, with bilateral trade reaching more than $300 million. The minister was speaking at the inauguration of the Embassy of Honduras in New Delhi. Dr. Jaishankar added that the opening of the Embassy of Honduras in the national capital will go a long way to facilitate trade promotion, encouraging business people to use the embassy as a hub for matchmaking. The minister asserted that the economic engagements between the two nations have been underpinned by trade, investment and technical cooperation. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 IAC के तहत आयकर छूट के लिए 187 स्टार्टअप को मंजूरी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2030 तक निगमित स्टार्टअप अब आयकर छूट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को वित्तीय राहत का लाभ उठाने के लिए और अधिक समय और अवसर भी मिलेगा। मंत्रालय के अनुसार कर लाभ के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप को निगमन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में लगातार 3 वर्षों के लिए मुनाफे पर आयकर में 100% छूट देने का प्रावधान है। बहुत संक्षेप में, अगर स्टार्टअप्स के लिए इस तरह की इनकम टैक्स की ही अगर छूट आती है तो ये कितना बड़ा बूस्टअप मिलता है ऐसे नए स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि 10 साल में लगातार 3 वर्षों में आपको जो भी आपको लाभ मिलेंगे उसमें आयकर का 100% छूट है। देखिए, उसी वजह से हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना, और 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप अभी हमारे पास हैं। एंड मैनी यूनिकॉर्न्स एज वेल। यस, मैनी यूनिकॉर्न्स। एंड आने वाले टाइम में ये जो ट्रैजेक्टरी है ये निरंतर ग्रो करेगी, और क्योंकि हमारे पास जो भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें हमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट वी हैव टू बूस्ट दोज टैलेंट्स विद सच काइंड ऑफ पॉलिसी। उनके लिए ये सारी चीजें। And interestingly, we have startups associated with space and defense, which is remarkable. चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अप्रैल 2025 के दौरान श्रम बल भागीदारी दर LFPR 55.6% के स्तर पर रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहले मासिक आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर आयु वर्ग के श्रम बल की भागीदारी अप्रैल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 58% और शहरी क्षेत्रों में 50.7% रही। अप्रैल के दौरान इसी आयु वर्ग में देश भर में बेरोजगारी दर 5.1% रही। इसके तहत पुरुष वर्ग में 5.2% और महिला श्रमिकों में बेरोजगारी दर 5% रही। आंकड़ों के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात 52.8% दर्ज हुआ। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 55.4%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 47.4% रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने कल घोषणा की थी कि रोजगार दर के आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए मासिक आधार पर आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसी कड़ी में पहले आंकड़े अप्रैल माह के लिए जारी किए गए हैं। फौरी तौर पे आंकड़े जो भी कुछ हैं, लेकिन हम इसका महत्व समझें। अगर अभी तक मासिक आधार पे नहीं होते थे, त्रैमासिक आधार पे होते थे और वार्षिक आधार पे होते थे। अगर इसको मासिक आधार पे किया जाता तो हमारी ये योजनाएं बनाने, पॉलिसीज मेकिंग में कितना सहायक सिद्ध हो सकती हैं अगर बेरोजगारी के आंकड़े हमको मासिक आधार पे मिलते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, जो हम देखते थे कि इन्फ्लेशन जो है हमें मंथली बेसिस पे मिलता है, हमारा जो IIP है मंथली बेसिस पे हमें मिलता है, एक्सपोर्ट भी। ऐसे जो सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, खास करके जो एम्प्लॉयमेंट का भी एक हाई फ्रीक्वेंसी डेटा मिलना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि जो एक ग्राउंडेड पॉलिसीज बनाने में एक सहायता मिलेगी कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि वो डेटा भी बहुत लैग से होता था, जो त्रैमासिक आपने बताया वो भी आगे फिर 3-4 महीने के लैग से आएगा, तो फिर उसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं रह जाता कि हम उस टाइम पे सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी होती है। तो अब जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी डेटा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे वो जो भी मंथली बेसिस पे मिलेगा, और उससे हमें पॉलिसीज में और अपने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनके लिए, उनको और गति देने के लिए हमें आगे जो है सपोर्ट मिलेगी, और हम बेहतर पॉलिसीज आने वाले टाइम में बना पाएंगे। When we usually talk of employment and unemployment. Here we have used the phrase labor force participation rate. For the sake of common people who are tuned in, how would you describe this? Labor force participation is when the people are ready to participate for work. Labor force participation, sometimes it goes up and sometimes it goes down. The people don't want to work.
so they are not participating in the workforce. So now, as we compare the rural segment and the urban segment and the women participation in the labor force Right. and men participation in the labor force, and there are some differences also between all these four segments. So this is the intent to participate in the work actually. तो क्या इसका ये मायने है कि कैसे, जैसे हमारे यहाँ जब हार्वेस्ट सीजन होता है तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में लेबर फोर्स ज़्यादा होती है, शहरी क्षेत्रों में ऑब्वियसली वो उसका प्रतिशत कम हो जाता है, तो ये सिचुएशंस को सब चीज़ें सही तरीके से आंकने के लिए मासिक आधार पे जी आंकड़े- जी बिल्कुल। Gig workers- इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी चीजें सीजनल होती हैं। जी। जैसे कई बार जो क्रॉप सिस्टम होता है उसमें ये पार्टिसिपेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी, लोग काम करने के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए तैयार होंगे कुछ बट टाइम वो पे। रूरल एरिया में ज्यादा Yes, होगा, रूरल में अर्बन yes, एरिया में yes, नहीं ऐसे होगा। कुछ ऐसे मानसून आ जाएगा तो सब जगह में जी, कुछ जी, ना कुछ जी, दिक्कतें बिल्कुल। आएंगी। And India is a very peculiar country. Sometimes I feel when there is marriage season, you need so much of people. You need people who are जैसे Right. band बाजा बजाते हैं या ऐसे कुछ लोग आते हैं और वही लोग बाद में फिर गांव में चले जाते हैं for the during the Right, harvest season. right. India is rather So, complex in yes, this way. yes, No? yes. You won't find this in the Western world. All right, moving on. Oil prices fell today on expectations for a US-Iran nuclear deal, which could result in easing of sanctions, while a build in US crude oil inventories last week heightened investor concerns about oversupply. Brent crude was trading 3.1% down at $64.10 per barrel. WTI crude was also trading over 3.2% down at $61.12 per barrel when reports last came in. Meanwhile, Energy Information Administration data showed U.S. commercial crude oil inventories increased by 3.5 million barrels to 441.8 million barrels in the week ending on 9th of May. Earlier, the Organization of the Petroleum Exporting Countries plus Russia and other allies, OPEC Plus, on Wednesday, trimmed its forecast for growth in oil supply from the United States and other producers outside the wider OPEC Plus group this year and said it expected lower capital spending following a decline in oil prices. Supply from countries outside OPEC Plus will rise by about 8 lakh barrels per day in 2025, OPEC said in a monthly report, down from last month's forecast of 9 lakh BPD. It further added that crude spot prices averaged lower in April, extending the previous month's losses, primarily driven by the decline in futures markets and weaker market sentiment due to evolving trade tensions, particularly between the US and China. Over to gold now. अमित। हाँ, सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें में आज गिरावट ही रही। सोना मामूली गिरावट से 92,610 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी हल्की मंदी से 95,430 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना 92,261 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर बना रहा, जबकि चांदी 0.3% की मामूली गिरावट से 95,213 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। डॉक्टर शर्मा, दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपका ध्यान, उधर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट होती है। भारत के लिए इसके कितने मायने हैं या वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं? और अगर वापस से भारत में आते हैं, सोने और चांदी के प्रति जो नैसर्गिक लगाव है, लालिमा को मुझसे ज़्यादा होगा, हो भी सकता है, होना भी चाहिए, तो भारतीय महिलाओं में जो इसके प्रति जो लगाव है, सोने ने एक झटका मारा है और ऐसी भी कुछ स्पेकुलेशंस थी कि सोना 90,000 से नीचे के स्तर या उसके आसपास आ सकता है। आप क्या मानते हैं? पहले कच्चे तेल के बारे में, फिर इसके बारे में। देखिए, कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आना तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, खास करके क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है जो हमारे फॉरेक्स को भी इम्पैक्ट करता है, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा ही होगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, जो सोने की आपने बात की है, वो अभी जो करेक्शन है जो आप 90,000 की बात करते हैं, दैट कांट बी रूल्ड आउट, वो भी हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि डिमांड कम हो रही है, ये डॉलर, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी देखा आपने कि डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड में मामूली सी करेक्शन हमने देखी है। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस आने वाले टाइम में नॉट ओनली फॉर द वीक्स और मंथ्स, फॉर द ईयर्स विल रिमेन इंटैक्ट, बिकॉज गोल्ड इज इन ए मल्टी ईयर बुल मार्केट। समय की बाध्यता है, थोड़ा सा समय, लेकिन फिर भी शेयर बाजार में तेज बढ़त है। सोना उसकी चाल के साथ कदम ताल करेगा या दोनों अपनी अपनी अलग अलग चाल? देखो, दोनों अपनी अपनी सिचुएशन लेते हैं और दोनों का जो दे मूव इन दी upward trajectory, but situationally sometimes some goes down and another goes up. A very interesting thing is that India's edible oil imports have dropped sharply by 32% year on year in April, and that's a very interesting
चलिए observation. डॉक्टर जी। शर्मा, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा सरल शब्दों में श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर जी एक जी बार जी फिर। Benchmark domestic equity indices stage sharp trend reversal. Sensex surges 1,200 points. Nifty reclaims 25,000 level after 7 months. Most Asian markets end in negative territory. European indices trade mixed, and global crude oil prices drop over 3%. Brent crude trades at $64.10 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goel, and our expert, Dr. S.P. Sharma, signing off. Namaskar. थैंक यू। Market Mantra.